Welcome back, everyone. Hello, I'm Raman Tirpure, and today we are back with second part of this consumer behavior topic, which is very important topic for all the UGC and aspirants, for the BBA syllabus, for MBA, for BMS, and other ESIC director marketing management related subjects. So yesterday, in the last lecture, we have discussed about consumer behavior. We have gone through the basics of introduction of consumer behavior. What is the meaning of it, consumer behavior? Then we have talked about the features. We have talked about why it is important about to understand consumer behavior for the marketers and what it brings to table when we understand consumer behavior and how can marketer or organization use this insights of consumer behavior in their communication as well, right? Then we have discussed about various factors influencing, and we have divided factors influencing into four factors: situational, personal, social, and psychological. In which psychological we have distributed again into four factors: motivation, perception, beliefs, and attitude learning. I'm not going to repeat perception, belief, and learning. This, if you don't know about this difference between perception and belief, I would request you to go back to my last video where you can find the difference between this perception and belief. Then social factors, where three factors different, it divided into three small factors: family, reference group, and social status. From today, we are going to, in this lecture, we are going to talk about diversity of consumers and their behavior, and depending on their involvement, how consumers are differentiated. So, as the name suggests, diversity of consumers. What is diversity? Diversity means a change in nature, variety of nature of consumers. Their characteristic, preferences change. It could be because of various reasons. It could be because of personal liking, dislikings. It could be because of geographical region. It could be because of their situational purpose. It could be because of economical purpose, right? So there are different level of diversity of consumers. All the market doesn't consist of the same type of consumers. Every consumer is different from the other one. So there's a huge amount of diversity in consumer, whether it belongs to gender, whether it belongs to city, whether it belongs to country, whether it belongs to economic status of them. So diversity of consumer understanding a very important aspect. And depending on that region aspect or what is the liking and disliking, the organization, the marketing team need to analyze their behavior and need to take proper action accordingly, right? So, and depending on this, so for certain product, level of involvement is there. What is level of involvement? Let's understand this. It's basically a degree of information processing. It's basically a degree of information processing and the amount of importance a consumer attaches to a product while purchasing it. Involvement कितना है? अगर कोई प्रोडक्ट कोई परचेस कंज्यूमर परचेस करने जा रहा है वो कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें. ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके जिसके लिए कंज्यूमर कभी कोई ब्रांड की वैल्यू कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं पूछता, राइट? बट वेयर एज अगर हम कुछ लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट की बात करें तो स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक ब्रांड की जब हम बात करते हैं तब उसके बारे में हमें नॉलेज होता है तो हमारा इन्वॉल्वमेंट लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? वी नो अबाउट दैट ब्रांड कि हम लोग उसे क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है, वो बाकी से क्यों बेहतर है, हमें पता होता है. बट वेयर एज सर्टेन प्रोडक्ट्स हमारा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लो, राइट? जिसमें हम लोग हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता, हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट चाहिए वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से कंपनी का है, राइट? एंड इट शोज हाउ इन्वॉल्व कस्टमर्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट पर्सनली, राइट? तो उनका पहला प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है उस प्रोडक्ट के बारे में और वो उससे कितना अटैच्ड है, उसके बारे में कितना जानते हैं. दिस इज टेस्ट द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, right? So depending on level of involvement, consumers are divided into three types of level of involvement, right? Low level, medium level, and the high level, right? So high level, you can see that on the slide, I have divided and have made a comparison of involvement levels. So let's understand what is high level involvement. As we have discussed earlier, high level of involvement strongly linked to end goals. ठीक है, हमें पता है कि हमें ये प्रोडक्ट लेंगे, हमें क्या अचीव करना है. So secondly, जब हम मीडियम की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट लिंक टू फंक्शन. एंड गोल से मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमें एंड में हमें उसका ये चाहिए, बाय प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है. उसका सिर्फ फंक्शन काम करता है, राइट? जस्ट कंसिडर कि हम लोग अपने घर में वायरिंग कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग ये एकदम ये चेक नहीं करते कि लास्ट 15 ईयर्स के बाद वो कितना स्टैंड करेगा. फॉर टाइम बिंग हमें अगर लग रहा है कि अगर कुछ सीरीज लगा रहे हैं हम अभी, अगर दिवाली सीजन है, कुछ फेस्टिवल है आपके यहाँ पे, तो हम लोग एक बेसिक थोड़ा सा मीडियम लेवल का एक वायर यूज कर लेते हैं सो दैट हम लोग कुछ 15-20 दिन के लिए हम सीरीज कनेक्ट करता है और बाद में उसको निकल कर सकते हैं. तो मीडियम लेवल.
एंड लो लेवल इन्वॉल्वमेंट इज लाइक इररिलेवेंट, उससे कोई मतलब नहीं। अभी हम शॉप, आप दुकान में गए, आपने बोला कि भैया आधा लीटर दूध का पैकेट, ठीक है, तो उसने कोई भी दे दिया, आपने ले लिया, आपने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे हल्दीराम चाहिए, मुझे गोवर्धन चाहिए। दिस इज लो लेवल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट टू गेट इट राइट एट फर्स्ट टाइम। हाई इन्वॉल्वमेंट, हाई इन्वॉल्वमेंट मतलब आपका फोकस है कि मुझे वो प्रोडक्ट मिलना ही चाहिए और सही समय मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी वांट है, जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। उसका मीडियम थोड़ा सा रीजनेबल रिलायबल रिजल्ट आ जाए उसका, ज्यादा कुछ फोकस नहीं होता है कि मुझे इतना 100% मिलना चाहिए। इफ द रिजल्ट कम्स आउट 90%, यू आर मोर देन हैप्पी, राइट। वेयर एज लो इन्वॉल्वमेंट में आपको रिजल्ट परसिव टू बी सेम विच एवर प्रोडक्ट चूज हो। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसका वही होने वाला। जस्ट इमेजिन करो कि आपने आप डिस्टेंबर का पैकेट लाया, कलर करना आपको आपके रूम को, अब वो कोई भी कंपनी का हो सकता है, आपको रिजल्ट एट द एंड ऑफ पेंट होने के बाद वो व्हाइट ही दिखने वाला है, बिरला व्हाइट हो जाएगा, फिर दूसरा कोई भी व्हाइट, है ना। तो दिस इज परसिव रिजल्ट टू बी सेम विच एवर प्रोडक्ट। फिर हाई इन्वॉल्वमेंट में बात करते हैं, कंज्यूमर हैज इन डेप्थ नॉलेज, जो हमने पहले बात की थी कि इन डेप्थ नॉलेज, उसको अपना ओपिनियन पता है, उसको पता है कि मुझे यही चाहिए। मीडियम लेवल में थोड़ा सा नॉलेज है और उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसको पता है कि मुझे ये कुछ ब्रांड्स है इसमें 4-5, उसमें से कोई भी एक मिल जाए तो ही इज हैप्पी। बट वेयर एज हाई इन्वॉल्वमेंट, नहीं, मुझे वो 4-5 नहीं चाहिए, मुझे वो स्पेसिफिकली वही ब्रांड चाहिए, वही चाहिए, अगर दूसरा मिलेगा तो वो लेगा नहीं, ठीक है। और लो इन्वॉल्वमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप इलेवन, उससे कोई मतलब नहीं कि वो उसमें कितना कंपोनेंट कौन सा है, कौन सा केमिकल क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड और आपको ये कोई डिफरेंशिएशन आप आराम से खुद के हिसाब से भी लिख सकते हो। दिस इज कंपैरिजन बिटवीन इन्वॉल्वमेंट लेवल्स, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन इन्वॉल्वमेंट लेवल, कंज्यूमर बिहेवियर हैज डिवाइडेड, बाइंग बिहेवियर के हिसाब से 4 टाइप में दे हैव डिवाइडेड कंज्यूमर्स। पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अब इफ यू कैन सी ऑन द डायग्राम, the x-axis shows you degree of involvement, whereas y-axis shows you difference among brands, perception of brands, ठीक है। अब इसके पहले अभी ब्रांड आया, तो ब्रांड क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड is something which differentiates other products which are into similar nature by its logo, by its name, right? It differentiates it. If I talk कि कुछ ब्रांड्स है, स्नैक्स के ब्रांड्स है, इफ आई टॉक स्नैक्स में बहुत सारे ब्रांड्स है, बालाजी इज देयर, हल्दीराम्स इज देयर, बेंगो इज देयर, लेज इज देयर, बट लेज एक अलग ब्रांड बताता है, बालाजी फेमस है हाई क्वांटिटी के लिए, राइट, एक अलग पहचान बनाता है, इट्स अ ब्रांड, इट डिफरेंशिएट्स अदर प्रोडक्ट्स विच आर इनटू सेम कैटेगरी, राइट, एक अलग उसकी पहचान होती है। हम जब नूडल्स की बात करते हैं, मैगी, मैगी एक अलग ब्रांड दिखता है, अगर आप नूडल्स बोलोगे तो आपको बहुत सारे लोकल मिल जाएंगे, ब्रांड इट हैज ऑलरेडी डिफरेंट वैल्यू टू इट, राइट। सो लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे जब हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, we'll be discussing all these 4 different types of buying behavior. So just understand this figure first. When the involvement is high and the brand significant is high also, that time complex buying behavior is seen. Whereas involvement level is low and brand significant is high, variety seeking behavior is there, ठीक है। जब इन्वॉल्वमेंट हाई हो, सॉरी, जब when the involvement is high and the perception among the brands is very few, that time dishonest reducing behavior is happens. And whereas when the low involvement is there and very few among brands, habitual buying behavior is there, ठीक है। So let's understand each of them in very vast manner. Now let's understand what is complex buying behavior, ठीक है। This behavior usually happens when a consumer is buying an expensive product, ठीक है, and he is specifically buying it for the very first time. This usually happens when we are buying a car or something, कि हम लोग इसके पहले कभी लिया नहीं है and we are, हमें उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो व्हाट डू वी डू यूजुअली, वी वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, वी टॉक टू आवर कलीग्स, उनके बारे में उनके पास से उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे साथ समझते हैं, राइट। So complex behavior is encountered particularly when consumers are buying an expensive product. In this frequent transaction, consumers are highly involved in purchase decision because, as it is clearly mentioned, it is an expensive product. So one time purchase होगा, they don't want to take any risk. That time ये complex buying behavior आता है वहाँ पे. The consumer behaves very differently when buying expensive or a product that is unfamiliar with them.
उसे लगता है कि मेरे पैसे कहीं भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए। जस्ट एग्जांपल, when a consumer is buying car for the first time, it's a big decision, right? It involves high economic risk. There's a lot of thought on how it looks, how his friends family will react, how will social scale. So this complex buying behavior is in this state of buying behavior, he usually tries to take information of all the brands, try to collect all the information from what are the sources he could do. This is complex buying behavior. In this behavior, involvement towards the brand is very, very high. हमने पहले भी high involvement, low involvement, mid involvement की बात की. So when we talk about complex buying behavior, it comes. देखिए, complex buying behavior की बात करें, high involvement is there, and brand की significant क्या है, बहुत high है. Significant is high in brands. This is complex buying behavior. I hope this is clear. Let's move to the next. So dishonest reducing buying behavior. ठीक है. In dishonest reducing behavior, consumer involvement is very high. This is similar to somewhat complex, but in this, availability of choices is very less. Let me tell you. अब when we हमने last बात की, तो cars के लिए हमारे पास काफी brands अवेलेबल, but whereas जब हम dishonest reducing buyer की बात करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो infrequent purchase तो है ही, consumer involvement is very high, but the available options are very less, right? तो जो ऑप्शंस है, जो कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस है, उसमें से उनको चेक करना, एक चूज करना होता है. सो dissonance, like involvement is high. If you can just look at the diagram, involvement is high, but difference among the brands is very few. This is dissonance buying behavior. You might ask me this, what is meant by dissonance? Dissonance is mean, if you can understood, there is a term called resonance, जहाँ पे frequency match होता है. Dissonance मतलब जहाँ पे frequency match नहीं होता है, right? कि हमें पसंद तो नहीं आ रहे, but हमारे पास choices बहुत कम है. So we have to take the decision. What are the limited number of choices we have, right? For example, a consumer is looking for a new collapsible table. ठीक है, that can be form of camping. Quickly decides on product. ठीक है, collapsible table चाहिए. ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे brands available नहीं है मार्केट में. So depending on very few, whatever the budget is available to you, depending on that, you will have to choose it. ठीक है. So first we have talked about complex buying behavior, जहाँ पे brands बहुत सारे available है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, और साथ में हाई इन्वॉल्वमेंट लेवल है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इसमें कार को याद रखना है. डिसोनेंस रिड्यूसिंग में कि यहाँ पे हम लोग उसे प्रोडक्ट तो एग्जैक्टली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट व्हाटएवर द लेस अमाउंट ऑफ ऑप्शंस द कंज्यूमर इज हैविंग, ही मस्ट चूज appropriate one which is suiting his economic status, it's suiting his available budget as well, right? For example, you can have this example, you can take note down this example of कोलैप्सिबल टेबल, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट लेवल इज वेरी हाई. ये तीन पॉइंट आपको हरदम याद रखना. आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करना. दैट में हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर इज समथिंग which involves very low involvement. ठीक है, वेरी लो इन्वॉल्वमेंट. इफ यू कैन सी द डायग्राम, यहाँ पे हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर रोज के प्रोडक्ट्स है जिनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसमें, और इन्वॉल्वमेंट लेवल बहुत लो, इनको उससे ब्रांड की उससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसकी प्राइस भी कम है थोड़ा सा और उसमें ब्रांड्स भी कम है. ठीक है. So habitual buying behavior is depicted when the consumer has low involvement in purchase. In this, consumer is perceiving only a few significant difference between them. थोड़ा बहुत उसको पता है, थोड़ा बहुत उसको information होता है. When consumers are buying day-to-day product they use for daily routines, they do not put a lot of thought. They either buy their favorite brand or another. Just example for it's like a cookie. चलो आज अभी कुकी खरीदना है हमें मार्केट में. अब हो सकता है कि उन्होंने कल कुछ एक दूसरा कुकी लिया, आज वो अवेलेबल है मार्केट में, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं. He will pick rather कुकी, उसी ब्रांड का हो सकता है, थोड़ा सा अलग वेरिएंट हो जाए, बट उससे सब काम चल जाएगा. सो देयर इज नो ब्रांड लॉयल्टी. ठीक है, यू आर गेटिंग द पॉइंट. यहाँ पे कुकीज का आप एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है, consumers just go and for it and buy it. There is no brand loyalty. Customers do not research or need information regarding the purchase of such products. बहुत ज्यादा कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है. जैसे कार के केस में कर रहे थे, नहीं. ठीक है. Variety seeking behavior. This is something a very complex behavior. Let me tell you. And this is usually happens in today's the millennial generation and the Z generation, right? Here, people try to change their brand significantly on their own. Why? Because they want to change. They want to experience new things. Boredom हो सकता है. Lot of brands, like we have this competitive market today, where lots of brands are there, and people want to switch and people want to try those new products.
So this is variety seeking behavior. Consumers here are generally buying products not because of dissatisfaction, but mainly to urge seek variety. है ना? ऐसा तो नहीं होता कि लास्ट वाला प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया उससे डिससेटिस्फाइड इसलिए हम दूसरे पे शिफ्ट करें, नहीं. बट व्हाई दे आर शिफ्टिंग, दे जस्ट वांट टू हैव अ वैरायटी ऑफ. फॉर एग्जांपल, मैंने जो भी कुकी का एग्जांपल दिया था, सेम लाइक यू कैन से कि अगर हमने कुकी ली इस बार सनफिस्ट की, ठीक है, अभी हमें लगा कि नहीं यार सनफिस्ट का एक बार होगा डार्क फैंटेसी में ट्राई कर लिया, लेट्स ट्राई सम ब्रिटानिया, कैडबरी, ठीक है. तो वो आप सीख करने के लिए, वैरायटी सीख करने के लिए, राइट. केक के आप ऑप्शंस लेने जाते हो, ब्रिटानिया केक है तो लगा नहीं यार ब्रिटानिया का नहीं चाहिए मुझे, सनफिस्ट का चाहिए, राइट. या फिर कोई लोकल बीकानेर का चाहिए, कोई लोकल ब्रांड का चाहिए. So they are switching your often without intention. This is called variety seeking buying. I hope these four are clear. Depending on involvement level, let me take you back to the same diagram. On this same diagram, you can explain everything. Depending on level of involvement and the perception of difference among brands, the buying behavior are different, divided into four factors: complex buying behavior, variety seeking buying behavior, habitual buying behavior, dishonest reducing buying. I hope this is very much clear to everyone. Let's move to the next topic. What is customer profiling, right? Customer profiling is something usually done by the organization uh, to distribute customers into specific groups depending on their similar goals or characteristics, depending on their likely. So what we do, अगर हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है और हमने उसमें देखा कि कुछ एज ग्रुप के स्टूडेंट्स है, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, कुछ कॉर्पोरेट वर्कर्स है, कुछ किड्स है, कुछ 50 प्लस है. So we will form a group of them and we will distribute them in specific groups depending on their certain factors which include demography, location हो सकता है, hobbies हो सकती है, सोशल मीडिया चैनल्स हो सकते हैं. तो उसको स्पेसिफिक ग्रुप्स में प्रोफाइलिंग करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हिसाब से. एंड थ्रू दिस एनालिसिस हम उनके लिए टारगेट प्रोडक्ट, टारगेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन एग्जांपल करते हैं कि हम लोग सब कॉलेज में बैठे हैं, हमारे पास सारा जो लॉट है वो यंग का है, ठीक है, और मैंने स्टडी किया कि मोस्ट ऑफ यू आर स्पेंड 3 hours ऑन इंस्टाग्राम, राइट. और आप लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वी डू स्पेंड एवरेज 1 hour ऑन फेसबुक. सो व्हाट आई विल डू कि मैं जो इंस्टाग्राम पे जो ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं, आई विल फॉर्म देयर ओन ग्रुप, वन ग्रुप, ठीक है. और जो लोग फेसबुक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके लिए अलग ग्रुप. एंड आई ट्राई टू सी कि मैं उन लोगों तक उस माध्यम से पहुंच पाऊँ. टारगेट प्रोडक्ट से अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा समय, यू कैन सी मेनी एड्स कम्स ऑन योर इंस्टाग्राम पेज नाउअडेज. सेम गोज विद फेसबुक, ठीक है, और कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है. और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट, अगर अभी गर्ल्स में है, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो मैं उनके तक इंस्टाग्राम के थ्रू ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक पहुंच सकता हूँ थ्रू एआई एंड अदर स्टफ. सिमिलरली गोज विद दिस फेसबुक पैटर्न कि इनका कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मैं उनसे बात कर सकता हूँ. अगर उस अभी कुछ ग्रुप में स्टूडेंट्स है जो बॉडी बिल्डिंग में है, बहुत देयर इनटू जिमिंग एंड अदर स्टफ, मैं उनका अलग ग्रुप बनाऊंगा. मैं उनको उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स पोर्ट्रे कर पाऊंगा, उनके लिए प्रोडक्ट के साथ ही अलग कुछ कस्टमाइज वे में उनको एडवर्टाइज फोटोज भी कर सकता हूँ. सो दिस इज कॉल्ड कस्टमर प्रोफाइलिंग इन विच वी आर डिवाइडिंग देम इनटू स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है. अब दिस इज इन अर्लियर टर्म, दिस इज आल्सो नोन एज कस्टमर सेगमेंटेशन, राइट. एक टर्म आती है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, है ना. बहुत सारा मार्केट है, उसको सेगमेंट कर दो, ठीक है. बहुत सारे अभी फ्रॉम 1 year एज टू 80 years ऑफ एज लोग होते हैं, ये पूरा मार्केट होता है, उसको टुकड़े टुकड़ों में बांटेंगे, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाएंगे, राइट. ये हो गया सेगमेंटेशन. अभी इसी के बारे में हम बात करते हैं. तो दिस इज नॉट इन द टॉपिक बट लेट मी टेल यू टारगेटिंग में क्या होता है. हम जब सेगमेंट करते हैं तो एक सेगमेंट के ऊपर अकॉर्डिंगली उसके लिए प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन बनाते हैं, कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, कैंपेन्स लॉन्च करते हैं. दिस इज टारगेटिंग. एंड पोजिशनिंग, पोजिशनिंग मतलब क्या, उस एड के थ्रू जो कस्टमर है हमारा सेगमेंटेड, उसके दिमाग में उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को बिठाना, पोजिशन का. दिस इज पोजिशन. मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं बताया आपको. दिस इज अनदर टॉपिक यू कैन रीड, और इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन, आई विल बी शेयरिंग द वीडियो ऑन सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन एज वेल, ठीक है. सो कस्टमर प्रोफाइलिंग इज लाइक दिस कि हम लोग उसको बेसिकली कस्टमर के सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, सिमिलर गोल्स, कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज लाइक्सिंग, डिसलाइक्सिंग, डेमोग्राफिक, हॉबीज, प्रेफरेंस, सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू उनका बाइंग पैटर्न क्या है, साइकोग्राफिक क्या है, क्रेडिट बैकग्राउंड कैसा है, राइट, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है,
इसके थ्रू हम उसकी कस्टमर प्रोफाइलिंग करते हैं और अकॉर्डिंगली उसके पास वैसे प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज डन नाउअडेज। गॉन आर दोस गॉन आर दोस डेज जहां पे हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट ला देते हैं और सेल करते हैं ना। नाउ द टाइम हैज चेंज, कस्टमर वांट कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। हम लोगों को लगता है कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, जिस तरह से हमें उस पर चेंजेस चाहिए, हम लोग वो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, वो हमें मिलना चाहिए। तो इसका पहला बेनिफिट है एबिलिटी टू टेलर मार्केटिंग एफर्ट टू रेलेवेंट ऑडियंस। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, अगर मैं कोई स्पेसिफिक ऐड चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ऐड 10,000 लोग देखें और उसमें से कुछ हजार लोग मेरे कन्वर्ट हो जाए, मतलब 10% कन्वर्जन रेट। पर अगर मैंने वो ऐड ऐसे लोगों को दिखाया जिनको वो प्रोडक्ट में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो हाउ दे गोना गेट कन्वर्ट इनटू द माय कस्टमर, राइट? तो रेलेवेंट ऑडियंस के पास हम पहुंच ही नहीं रहे, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर मनी एंड टाइम, राइट? सो जो प्रोडक्ट जिस बंदे को चाहिए, जिस कस्टमर को चाहिए, उसी तक वो ऑडियंस तक पहुंचे, प्रोडक्ट उसी तक वो मार्केटिंग एफर्ट्स पहुंचे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कस्टमर प्रोफाइलिंग। सेकेंडली, पर्सनलाइजेशन ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस टू ब्रांड लॉयल्टी, जो मैंने बात की, कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कस्टमाइजेशन होगा तो ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, राइट? अभी यू कैन सी आजकल बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, हेयर ऑयल आ गया, ऑनलाइन आते हैं। व्हाट दे डू, वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपके कौन से प्रॉब्लम्स हैं, एंड दे गिव यू कस्टमाइज सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। और अगर उससे आप कस्टमाइज सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको लगता है नहीं है, दिस पीपल दिस कंपनी हैज डन सम वर्क ऑन मी, they have tried to analyze what is my concern and they have tried to solve my problem. Agar, and in this case, if the products are found to be good enough to solve his problem and makes him satisfied, people will ultimately have a loyal will start becoming loyal to the particular brand, and ultimately वो word of mouth से वो भी लोगों को बताएगा, and word of mouth plays a very important role, और वो भी खुद एक loyal customer। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, कैन प्रोवाइड अ मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ मार्केट पोजीशन। मोर होलिस्टिक, आपको समझ में आएगा कि मेरे पास कौन से मार्केट्स है, मेरे पास कैसे कैसे कैटेगरी के लोग हैं, उनको क्या लाइक्स है क्या डिसलाइक्स है, हॉलिस्टिक व्यू मिलेगा एक पूरा चिप। कि मुझे पता है कि मेरे पास एक 60+ एज ग्रुप के लोग हैं, एंड जो लोग अभी भी वो टूथपेस्ट को प्रेफर नहीं करते, दे वांट दैट मंजन, तो उनके लिए मैं मंजन लाऊंगा। बट कुछ यंग है जिनको मेंथॉल का टेस्ट पसंद है, सो आई विल हैव अ मेंथॉल टूथपेस्ट फॉर देम। तो दिस इज गिव अ होलिस्टिक एंड वेरी इंपॉर्टेंटली improves कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो हमने अभी बात की सेकंड पॉइंट पे। Customer satisfaction is the very biggest mode of marketing, because customer is called to be a king of the market, right? If you have a customer, then you have everything. If you don't have a customer, you don't have anything, irrespective of you how many resources and what amount of funds do you have. Having customer and having loyal customer and satisfied customer is something which a company always wanted to have. ठीक, फोर्थली फिफ्थली पॉइंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सेस क्लिक ऑन ओपन रेट, जो मैंने बात की, कन्वर्जन रेट, राइट? ये वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैंने ऐड दिखाई, उसके बाद जस्ट इमेजिन कि मैंने एक ऐड प्लेस की यूट्यूब और फेसबुक पे, और जो 10,000 लोगों ने देखी, जो मैंने पहले एग्जाम्पल शेयर किया, उसमें से 2,000 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट बाय करना चाहा, रिस्पॉन्स किया, वहाँ पे विजिट की वेबसाइट पे, इट मीन्स पीपल आर गेटिंग रिस्पॉन्स। मतलब मैं जहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ वहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, और मुझे जहाँ जो लोगों तक पहुँचना है मैं उन तक पहुँच रहा हूँ, है ना? हो सकता है कभी कभी हो जाता है कि आपका टारगेट कस्टमर सही है, बट दिस यूजुअली हैपेंस कि आपका जो तरीका है कंटेंट दिखाने का, कंटेंट प्रोवाइड करने का, वो अच्छा ना हो, तो शायद वो ओपन ही ना करे। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई साहब, पीपल आर वाचिंग द आइडिया, पीपल आर वाचिंग द एडवर्टाइजमेंट, but they are not clicking on it. Why? Because they are not getting convinced with your idea, with your content. ठीक है, लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, मोर पोटेंशियल कस्टमर प्रोस्पेक्ट कस्टमर टाइटल आइडेंटिफाई। ठीक है, क्योंकि होलिस्टिक व्यू मिल रहा है तो आपको पता चल रहा है कि ये किसी ने रिसर्च किया, बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, अच्छा ये दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर दिस, बाय गूगल एआई एनालिटिक्स एंड अदर स्टफ, हम लोग उसको वो ऐड दिखा सकते हैं, तो पता है कि इतने लोगों ने ये दिया, राइट? एंड लास्टली, इंक्रीज सेलर रेवेन्यू। सेलर रेवेन्यू सच अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट, सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, बट आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कॉस्ट कटिंग भी आपने की, बिकॉज ऑफ विच कि आप लोग जिसे नहीं ऐड, जिसको जिसको जरूरत ही नहीं प्रोडक्ट की, आप उसको वो ऐड दिखा के अपना खुद का पैसा वेस्ट नहीं कर। ठीक है, किस तरह कस्टमर प्रोफाइल किया जाता है यूजुअली, जब आजकल जो ऑनलाइन आप लोग अमेजोन से आप फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं, कस्टमर प्रोफाइल बनाया जाता है, राइट? आपका इनकम सोर्स क्या है, आप यूजुअली कौन से ग्रुप में आते हो, हॉबीज क्या है, ये क्या है आपको, फिर आप लोग देखा होगा कि आपको आजकल बर्थडे विशेष भी आते हैं कुछ कंपनी की, आपने कुछ प्रोडक्ट बाय किया, मैक्स से किया, पैंटालून से किया, सो दीज आर सर्टन
दिस इज हाउ द कस्टमर प्रोफाइल्स आर मेड एंड अकॉर्डिंगली आपके तक ये प्रोडक्ट भेज जाते हैं थ्रू एआई। आपको पता है आपका फेसबुक आप लोग शेयर करते हैं उनके साथ, राइट? So this is how they collect your information, and depending on your likes and dislikes, they try to provide their services and products to you, right? I hope this is very much clear. आपको एग्जाम में कस्टमर प्रोफाइल बनाने कोई नहीं बोलेगा, जस्ट यू नीड जस्ट टू रिमेंबर व्हाट इज कस्टमर प्रोफाइल एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली, ठीक है? लेट्स मूव. So this is usually platform. This is the profile templates usually through which the custom profiles are divided. Demographic का यूज होता है, जोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर पैटर्न कैसा है, बाइंग पैटर्न, एज ग्रुप वगैरह ये यूज किया जाता है, ठीक है? So this is the crux of this topic. Apart from this, we have discussed this topic already, that involvement, है ना? हमने इसके बारे में पहले बात कर ली थी. तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट की हमने बात की थी कि हैबिचुअल डिसीजन वगैरह होता है. लो इन्वॉल्वमेंट मतलब नहीं है ज़्यादा कुछ, कोई भी प्रोडक्ट दे दो, वॉशिंग पाउडर, स्किन क्रीम. हाई इन्वॉल्वमेंट में कार, डायमंड की हमने बात की थी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. आई एम टेकिंग बैक, मेरे कुछ स्लाइड्स चेंज हो गए. हाँ, एप्लीकेशंस का क्या है इसका मतलब, लेट्स समझ. कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ पे अप्लाई होता है? मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एनालाइजिंग, हमें कौन सा मार्केट को क्या देना है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, एनालाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी, है ना? कि आगे जाके थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अभी कैसी चीज़ें हमें चाहिए. लाइक इन क्लोथिंग वी सी कि हम लोग अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं कि लाइक ऐसे प्रोडक्ट्स आने चाहिए. फिर सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, हमारा प्रोडक्ट अगर इट्स वेयर इनटू कोल्ड ड्रिंक्स, तो हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री 50 डिग्री जाता है वहाँ पे टारगेट करेंगे, मार्केट नहीं करेंगे. तो टारगेट सिलेक्ट मार्केट जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, तो टारगेट मार्केट, और उसी में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सिलेक्ट टारगेट मार्केट में हम देखेंगे बच्चों के लिए कुछ अलग क्रीम ला सकते हैं, गर्ल्स के लिए कुछ अलग, ऑयली स्किन के लिए कुछ अलग, है ना? जैसे टारगेट मार्केटिंग. देन मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस, ठीक है? मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस कि आ, हम लोग प्रोडक्ट कैसा देंगे. लाइक हम लोग जो मार्केटिंग मिक्स की जब बात करते हैं, तो मार्केटिंग मिक्स में कुछ चीज़ें आती है, जैसे प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, आप लोग ये रिमेम्बर तो कीजिए. मैं प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है? 4 टाइम्स पी जो आता है ना? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, है ना? ये मार्केटिंग मिक्स का ये है, प्रमोशन. ये जो चार जो हमने बात की, प्रोडक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है, आप लोग उसे क्या करना चाहते हो, है ना? उससे आप किस कौन से कस्टमर तक पहुंचना चाहते हो, राइट? प्राइस क्या स्टेटस रखोगे, आपके यहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस क्या, आपके मार्केट का, कितने कितने प्राइस में आपको प्रोडक्ट ज्यादा लोग बाय करेंगे. और प्रमोशन, लोगों को कौन से चैनल से प्रमोशन करोगे. चैनल मतलब टेलीविजन चैनल नहीं, it could be related to which digital platform, it could be related to television, of course, it could be related to the billboards, it could be related to the uh, pamphlet, it could be related to newspaper ad, right? You're getting my point. This is marketing decision. अब right now we have discussed this 4 product, price, price, promotion. ये आता है marketing में decisions में, when we are talking about product, ठीक है? अब देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन कुछ आता है तो एक तो वो प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस प्रोवाइड करती है. तो ये चारों जो हमने पी की बात की है, ये आते हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? अब थोड़ा सा जब सर्विसेज की बात करते हैं तो ये चारों तो आते ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो आता ही है. इसके अलावा कुछ आता है, वो है प्रोसेस, पीपल, पीपल एंड, ओके मैम आई एम फॉरगॉटिंग दी वन, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? लास्ट वाला मुझे याद है, तो मैं आपको बता देता हूँ. लास्टली सोशल मीडिया, नॉन प्रॉफिटिंग मार्केटिंग. सोशल मीडिया, और ये समझना पड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मार्केटिंग चैनल हम लोग यूज करेंगे. हो सकता है नॉन प्रॉफिटिंग हो, है ना? नॉन प्रॉफिटिंग मार्केट हो कि आपको उसमें से कुछ पैसे ना मिल पा रहे हो, but you may be able to reach to the most of number of people, right? So and reaching out to the customer is very important, ठीक है? So physical evidence is the last piece, physical evidence, ठीक है? अगर किसी ने आपको एग्जाम में पूछा कि what are the
P is involved in services, तो तब आप ये सातों P's बताएंगे, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस, है ना। सर्विस का फिजिकल एविडेंस दिखना चाहिए। फिजिकल एविडेंस मतलब सर्विस आप कैसे दिखा, कैसे कर रहे हो, वो उन्होंने एक्सपीरियंस करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऑन वेरी टॉप ऑफ जस्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ ये प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कमोडिटी बेच रहे हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एप्लीकेशन ये हो गया। एप्लीकेशन में यू नीड टू एक्सप्लेन दिस ऑल पार्ट्स। नाउ very important topic is consumer decision making process. Like we have already discussed that consumer decision making process is a continuous process, and a fixed step process नहीं है. So it involves various steps. So main 5 steps it is divided into 5 steps. First step is need recognition. Second is information research. Third is evaluation of alternative. Fourth, purchase decision and post purchase decision. And let me tell you, after post purchase decision also, this cycle continues. It comes to need recognition, right? But हो सकता है थोड़ा सा गैप हो सके. But this is a 5 stage process. First is need recognition. Need recognition मतलब कि उसकी जरूरत है या नहीं है, प्रोडक्ट की नीड रिकग्निशन, क्या जरूरत है फिलहाल, प्रोडक्ट की जरूरत की इंटरनल स्टिमुलाई, नॉर्मल फिजिकल हंगर, भूख लगी है, खाना चाहिए, दिस इज नीड रिकग्निशन, कि हमें पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। लाइक एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है, इंटरनल इज लाइक कि हमें अंदर से लगे, मुझे भूख लगी है, मुझे सैडनेस लग रहा है, जॉय जेलसी लग रही है, सिकनेस लग रहा है, थर्स्ट लग रही है, प्यास है, मुझे पानी चाहिए, दिस इज नीड। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्स्ट्रा समय कि आप लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, यू सी अ टेम्पटिंग फूड और तंदूरी इज बीन प्लेस्ड ऑन द रोड, हमें लगता है कि नहीं यार, दिस इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हमें चाहिए, खाना चाहिए, दिस इज नीड रिकग्निशन, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज नीड रिकग्निशन। सेकंड स्टेप इज इन्फॉर्मेशन। अभी हमें नीड तो पता चल गया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद हम उसके लिए ऑप्शंस ढूंढते हैं कि इसको मैं सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कैमरा खरीदना है, अभी मैं टूर पे जा रहा हूँ, नीड तो मुझे पता नहीं कैमरा, तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करूंगा, कौन से कंपनी से कैमरा कितने कितने क्या रेंज में आते हैं, मैं सर्च करूंगा गूगल पे, है ना, कितना होना चाहिए। सो सेकंड स्टेप सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। फिर थर्ड स्टेप, इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास, कैनन इज देयर, देन सोनी इज देयर, वाई यू इज देयर, बहुत सारे कुछ ऑल कुछ है, बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएट करूंगा मैं कि मेरी इकोनॉमिक स्टेटस और मेरे बजट के हिसाब से मुझे कौन सा बेस्ट लग रहा है, कि मेरा जिससे मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाए। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन कैसे करेंगे ना, उसके फीचर्स, फंक्शनैलिटी, प्राइजेस, ईज ऑफ यूज, ठीक है। फीलिंग अबाउट ब्रांड, पहले अगर किसी ने यूज किया, किसी के पास आपने देखा है, तो उसका एक अलग असर होगा कि नहीं उसके पास है, मेरे उसके पास है, हमने यूज किया इस बार, तो फोटो क्वालिटी वाज अमेजिंग, ठीक है। इवेल्युएशन, अल्टरनेटिव इवेल्युएट किया हमने, और उसके बाद हमने परचेज किया। पर परचेज करने का मतलब हमने पे तो कर दिया, पर उसी पे काम नहीं हुआ। परचेज किया आपने, उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, उसे यूज कर रहे हो, यूज करने का पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन आपको कैसे लगा कि वो, अगर आपको ठीक लगा होगा तो ही आप किसी को बताओगे कि दिस प्रोडक्ट इज गुड एंड यू मस्ट हैव दिस प्रोडक्ट। अगर आपको नहीं लगा तो आप उसके लिए खराब भी बोलोगे कि नहीं, डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, दिस इज रियली रबिश वन, ठीक है। तो दिस इज पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। सर्विसेज से जब बात करते हो, आपने कभी कहीं गाड़ी सर्विसिंग की, आपको लगा कि इसने गाड़ी सर्विसिंग अच्छी की है, नेक्स्ट टाइम आप उसके पास ही जाओगे, जाओगे ना। अगर आपको पता चला नहीं यार, इसने कुछ तो गड़बड़ की है गाड़ी में, ना गाड़ी ढंग से वॉश की है ना कुछ, तो उसके पास नहीं जाओगे, आप वो दूसरे को भी बताओगे, आप उसको कि नहीं ये ठीक नहीं। So these are the 5 steps which are involved in consumer decision process. First one, need recognition, information search, evaluation of alternative, post purchase decision, and post purchase decision. ठीक है, I hope this much is very much clear to everyone. अब लास्ट टॉपिक जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, जिसमें हमने बात की थी कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल। तो कल्चर में बात कर ली कि आप लोग कैसे बिलोंगिंग से कल्चर, कौन से कल्चर जाते हो, आपका कल्चर कैसा है, सोशल क्लास कैसा है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपका कल्चर कैसा है, कौन से कल्चर से आते हो। अगर आपका कल्चर जैसे कास्ट बेस्ड सिस्टम्स हो गया, कुछ हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उस टाइप के क्लोज में आप फॉलो करोगे, तो दिस डिफाइंस योर कल्चर। सोशल मतलब फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक आपका रेफरेंस ग्रुप कैसा है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप कैसा है। पर्सनल मतलब आपकी लाइकिंग्स, एज, ऑक्यूपेशन, ठीक है। पर्सनल कैसा, साइकोलॉजी मतलब मोटिवेशन, परसेप्शन, आपको कैसे, आपको चीजें कैसे, आप किस चीजों को किस तरह देखते हो, ये बताता है। इकोनॉमिकल मतलब आपका आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, बेसिकली आपका फैमिली इनकम कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, कौन पॉलिसीज क्या है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर टॉपिक एज वेल।
आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जिसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले की स्लाइड में, पहले की वीडियो में मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछ जाते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं जो इन द फॉर्म्स ऑफ एमसीक्यूज भी आते हैं। सो यू कैन हैव दिस, मैंने जो अभी बात की है कि यू कैन हैव दिस टॉपिक ऑफ वेरियस फैक्टर्स, मैंने इस टॉपिक में पहले चैप्टर में इसे एक्सप्लेन किया, तो आप लोग इसे प्लीज देखिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप लोग इसे शेयर कीजिए। आई एम नॉट asking for any payment or other stick. I'm just doing for a, it's just my hobby of teaching, and I'm into faculty of, I'm presently working with Mumbai University, and I myself usually get qualified candidate. आपको कुछ अगर इससे अलावा कुछ टॉपिक्स और लग रहे हैं, if you want to take another topic, please do let me know. I'll be more than happy to help you. इसके अलावा कुछ आपको हेल्प लगे तो प्लीज come forward and please do let me know. Thank you so much. Please share this video and like this video.